چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین برادران قوم، الحمدللہ آج ہم ایسی معروف شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلسل 50 سال سے خدمت قوم کی کر لیتے آ رہے ہیں۔ حضرت مسعود علی خان صاحب ایک شاعر ہیں، ہندوستان کی ہر کونے کونے میں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ہر ہندوستان کے اسٹیٹ میں الحمدللہ مقبولیت اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی ہے۔ آپ 50 سال سے خدمات دے رہے ہیں قوم مہدویہ کو، جلسے ہیں، مکاں ہیں، شاعری میں ہر قسم کی ایک بولنے لگے کہ قوم کو ٹائم دیے ہیں آج کے زمانے میں۔ اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر، آپ کی خدمت میں رہ کر، آپ کی صحبت میں رہ کر حالات اور قوم کے کام جان سکے اور سیکھ سکے۔ تو میں تھوڑی سی آپ سے جو 50 سال کے وقفے میں جو وقت گزرا ہے تو مسعود بھائی سے جانکاری چاہتا ہوں کہ آپ کا کیسا رہا دور۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرف بھی ہم نے رخ کیا خالص للہیت کے جذبے کے تحت ہم کو کامیابی نصیب ہوئی۔ بالخصوص علماء کرام کا، دانشوران قوم کا ہمارا بہت ساتھ دیا اور نوجوانوں نے ہماری ہمت افزائی کی اور ہمارے ساتھ رہ کر آگے چلتے رہے۔ انہی کے تعاون کا نتیجہ ہے کہ تنظیم مہدویہ آج تک بھی نوجوانوں کے دلوں میں قائم ہے اور ہر دور میں نوجوان تنظیم مہدویہ سے وابستہ ہوئے ہیں۔ آپ انجمن میں بھی خدمات، انجمن کے بھی خدمات کتنے سال کا رہا تھا؟ الحمدللہ انجمن مہدویہ میں بھی تقریباً 22 سال تک خدمت انجام دی ہے اور تقریباً 9 سال تک بحثیت معتمدین اپنے فرائض انجام دیا ہے۔ میرے ہی دور میں انشاءاللہ کوششوں سے مہدویہ جونیئر کالج قائم کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آل انڈیا لیول پر خلافت کلام پاک کے مقابلے بھی منعقد ہوئے تھے۔ بالکل جہاں تک وہ کوشش کرتا رہا کہ معتمدین زمانے بھی ہمارے دور میں بھی کتب دینی شائع ہوتے رہے انجمن سے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 50 سال میں آپ کی جو آپ صحت کے مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ ابھی بھی آج رات کو قوم کی خدمت کے لیے نوجوانوں کے ساتھ ہو یا کسی کا بھی کچھ بھی قوم کا کام ہو، الحمدللہ آپ آگے آتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے اور ہمارے اوپر آپ کا سایہ ہمیشہ رہے۔ تو اب باہر گئے تو کیسے کیسے حالات ہوتے تھے باہر سے ہندوستان کے باہر بالخصوص ہم کرناٹک کے جیسے علاقے بنگلور ہے، چنپٹن ہے، میسور ہے، کرگاول ہے، منڈیا ہے، بنور وغیرہ میں الحمدللہ جہاں بھی گئے ہیں ادارے تنظیم مہدویہ کے رکن کی حیثیت سے یا صدر کی حیثیت سے اچھا خاصا ہم کو استقبال ملا ہے اور وہ لوگ دینی محافل سے مستفید ہوتے رہے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ دورہ کرتے رہیے۔ اسی طرح گجرات کے بھی علاقوں میں ہم نے دورہ کیا ہے، مہاراشٹر میں بھی دورہ کیا، بالخصوص اوسا اور عمرگاں اور ایک پرانڈا میں ہم نے جلسے وہاں بہت منعقد کیے ہیں۔ مقامی لوگوں کا بڑا تعاون ہوا، لیکن حالانکہ وہاں ایک ذہن ایسا ہے کہ جلسے منعقد کرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت خالد خان صاحب کو لے کر، عبدالفتاح سید جلال صاحب کو لے کر اس مقامات پر گئے اور جلسے منعقد کیا۔ اس سلسلے میں حضرت باقر منظور صاحب کا بھی ہم کے ساتھ بہت بڑا تعاون رہا وہاں اور حضرت خدا بخش میاں جی صاحب کا بھی بڑا تعاون رہا۔ بالخصوص اگر میں کہوں گا تو ادارے تنظیم مہدویہ کے قیام سے لے کر آج تک بھی اول مرشدین افضل حضرت مولانا سید نجم صاحب، ابو سعید محمود صاحب تشریف اللہ اور حضرت محمد میاں صاحب کا بالخصوص ہم کو بہت تعاون رہا۔ ہماری ابتدائی جلسوں میں یہ حضرات مخاطب ہوتے تھے اور اس کے بعد کا جو دور رہا ہم ان مرشدین کرام کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ادارے تنظیم مہدویہ کسی حال میں ایک حضرت مولانا سید مسعود مشرقی صاحب، دوسرے عبدالرحمان حضرت راشد منوری صاحب اور سید خدا بخش میاں جی صاحب، ان حضرات کا ہم پر بہت بڑا تعاون ہوا۔ تنظیم مہدویہ کے تقریباً ہر جلسوں میں یہ مخاطب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اگر کوئی مجھے نہیں آتا ہے تو آپ باقر منظور صاحب کو بلا دیتے ہیں، وہ بھی اگر جلسے میں نام بھی رہا تو شریک ہو کر مخاطب بھی کرتے تھے اور کارکنان تنظیم مہدویہ کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ یہ ہم کو بڑا ان بزرگان دین سے اور ہمارے قوم کے دانشوں سے بہت سا بڑا تعاون ملا۔ یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ کے ساتھ میں اتنے مشائخین کرام اور جو بڑے بڑے لوگ کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا اور جلسے وغیرہ آرگنائز کرنے کا موقع ملا، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ بالخصوص میں مرشدین کرام کا بالخصوص یہ جتنے بھی میں نام کیا ان کا بڑا احسان مند ہوں۔ میری ہر ختم پر ہمت افزائی کی اور جب بھی میں نے ان سے کسی کام کے سلسلے میں کبھی نہ نہیں کیا،
हर वक्त हर कदम पर उन्होंने ताउन दवान किया और इदारी तंजीम महदिया और बिलखुसूस कौम महदिया इन बुजुर्गान दीन की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। और बिलखुसूस तंजीम महदिया उनके जो ताउन हमको हासिल रहा और आज तंजीम महदिया जो क़ायम है, जो मशहूर और मारूफ है, इन्हीं बुजुर्गान दीन की दुआओं से और उनके तकारीब से और उनके जलसों से हमको कामयाबी नसीब हुई। बहुत खुशी की बात हुई आप नौजवानों से और हमसे, मैं आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह और कुछ अगर आपके कुछ ख़ास वाक़यात अगर है तो हमारे बिरादरान कौम को सामने पेश कीजिए, क्योंकि ये आपके 50 साल पूरे हुए। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी तंजीम को और आगे बढ़ाए। बड़ी मसरत की बात है कि आप इस दौरान भी आप खिदमत दे रहे हैं कौम की, बहुत बहुत खुशी की बात है। ऐसे कुछ वाक़यात अगर आपको पेश है जो बुजुर्गान दीन या मुर्शिदीन इकराम के जो आपकी ज़िंदगी के साथ एक अच्छा हादसा गुजरा तो जो कौम भी सुनना चाहेंगे। मैं बिरादर अशरफ भाई आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हम जिस रुख से भी कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़े तो हमारे पास जज्बा यही था कि किस तरह से कौम के नौजवानों को फ़ायदा पहुँचे। यही हमारी एक ख्वाहिश थी, यही मंजिल थी और इदारे तंजीम महदिया का मकसद भी यही था कि कौम के नौजवानों में दीनी शऊर को बेदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी शऊर बेदार हुआ। आज इस तंजीम महदिया के कारकुनों अख्ताई हिंद में जहाँ जहाँ महदवी, अख्ताई हिंद में नहीं वर्ल्ड में भी जहाँ जहाँ महदवी उसी ममालिक में रहते हैं वहाँ के इदारों पर साथ रहते हैं और बहैसियत ओहदेदार भी वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये तंजीम महदिया की कोशिश है, उनकी अराकीन की, जिसके वहाँ के लोगों ने उनको भी लिया, हाथों हाथ लिया और उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं। मुझे ये कहता हुआ खुशी होती है कि मुझे हज़रत मौलाना सैयद नजमुद्दीन साहब के मुबशर बिज़ुल्लाह उनका बड़ा कर्म एहसान था। उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि देखो बेटे, जब इदारे क़ायम करते हैं या बंदीमन क़ायम करते हैं तो दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखो। ये ज़माना लिटरेचर का है और दीनी बातों को पहुँचाने का है। आप दो चीज़ों को पकड़ के रखो, एक दीनी महफिल का इनेकाद करते रहो और दीनी कुतुब मुख्तलिफ शक्लों में सूरतों में, चाहे वो एक सफ़े का क्यों ना हो, कौम के हाथों में देते रहो। इस तरह से हम उनको ये ग़िज़ा पहुँचाते रहेंगे तो यकीनन उनके दीनी फ़हम में उजागर होगा, दीनी शऊर पैदा होगा और दीनी मालूमात में भी होगा। उन्हीं की काविशों का ये नतीजा ये है कि इदारे तंजीम महदिया से 104 किताबें 50 साल में शाये हैं, यानी एक साल में 2 किताबें शाये हुई। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अख्ताई हिंद में जितने भी इदारे हैं किसी के पास भी इतनी तादाद में कुतुब की इशाअत नामुमकिन है। और बिलखुसूस इदारे तंजीम महदिया और बज़्म तौफ़ीक़ ने हमारे जो शोरा हैं वो बड़ी मेहनत और जाँफशानी के साथ कलाम को लिखते हैं लेकिन वो शाये नहीं होते। इदारे तंजीम महदिया और बज़्म तौफ़ीक़ ने मिलकर 15 शोरा कराम के कलाम को शाये किया और उन शायरों को दीवान बना, दीवान अता हो गया। अगर ये अल्लाह ताला का फजल व करम है। अब हर मामले में मुझे उलमाए कराम का, कौम का और साहब सर अफराद का ताउन रहा है। और बिलखुसूस महलमा नूराइल की इशाअत में मैं औसा बिरादरान का, यानी पत्थरगट्टी भी जो हमारे ताजिर हैं पार्टेजात किया, उनका जो ताउन है मैं फरामोश नहीं कर सकता। हमारे नूर विलायत जो मुसलसल 44 साल से शाये हो रहा है। आज साउथ इंडिया में वाहिद पर्चा है नूर विलायत जो 44 साल से गुजर हो रहा है। ये हमारे पोस्ट ऑफिस इंडिया के ऐलान के मुताबिक है। ये बहुत बड़ा कहना। इस पर्चे को इस्तेकाम अदा करने में हमारे पार्टीजात अवसर के लोगों का बहुत बड़ा तावन है। उन्हीं के तावन से पर्चा चलता है। यकीन जानिए खालीन एक पैसा जो 300 रुपये सालाना है कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 2022 में हमें सिर्फ 52 अफराद से सालाना चंदा 300 रुपये वसूला और किस तरह से हम पर्चा शाया करते हैं ये हम ही जानते हैं, अराकीन जानते हैं। और दूसरी बात है कि इदारे तंजीम महदिया कभी भी रसीद बुक नहीं चाहेंगे, कोई रसीद बुक हमारे पास नहीं है। हम अराकीन मिलकर कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई जलसा मुनक़िद करना है तो आपस में दाल का इंतखाब कर लेते हैं। मगर ये अल्लाह ताला का फजल व करम व एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया। हमारी दिली ख्वाहिश यही कि अल्लाह ताला तो हमारी खिदमत को कबूल करा और कौम को वो शान मुकाम पर पहुँचा जो उसका मुस्तहक़ रखते हैं। सुभान अल्लाह। अभी आप हज़रत मसूद अली ख़ान साहब सदर सरपरस्त और बानी से बयान सुन रहे थे। बहुत खुशी की बात हुई आपसे मिलकर और आप लोग भी इंशाल्लाह बिरादरान कौम हज़रत के बातों से भी सुनकर इंशाल्लाह आप भी कुछ इस काम में हिस्सा लीजिए और आपके लिए दुआ कीजिए। और आप कुछ बोलना चाहें? आखिर में एक बात मैं ज़रूरी कहना समझता हूँ
कि इदारे तंजीम अहमदिया को नौजवानों को बहुत साथ रहा। फिलवक्त हज़रत नेमतुल्लाह खान साहब सूफ़ी का भरपूर तावन इदारे तंजीम बहैसियत सदर इदारे को तावन हासिल है। वो बहैसियत सदर बहुत ऐसा तरीके से कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दीनी महफिल के ज़रिए बिलखुसूस नौजवानों के नहीं उम्रज़दा अफराद को भी दीनी मालूमात पहुँचा रहे हैं। उनका कारनामे बहुत बड़ा है। इदारे तंजीम महदी भी उनकी खिदमत को भी फरामोश नहीं कर सकती। उनसे बहुत सारी तौक़तें वाबस्ता हैं। नेमतुल्लाह खान साहब भी 20-25 साल से करेंगे, तकरीबन 17 साल से वो इदारे के सदर हैं। इदारे के 17 साल से सदर हैं। बिलखुसूस इदारे तंजीम महदिया में जो अफराद सदर बहैसियत सदर काम अंजामी है, उसमें नातिस फ़कीर भी है, सैयद अब्दुल्ला अतर है, डॉक्टर अबू लतीफ़ सैयद मोहम्मद सैफ साहब हैं जो इस वक्त अमरीका में हैं, और सरवर अली खान साहब हैं, हाफिज़ सैयद अब्दुल अजीज़ एहसन हैं, अबुल फैज़ सैयद अहमद साहब आबिद भी हैं, अफजाल अहमद खान साहब भी हैं, और नेमतुल्लाह खान साहब सूफ़ी ने बहैसियत सदर इदारा इस इदारा तंजीम महदिया की खिदमत अंजाम दी है। माशाल्लाह तमाम तंजीमें के लोगों के लिए मुबारकबाद और उनकी कामयाबी और उनकी खिदमत के लिए हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि ये तंजीम इंशाअल्लाह अब ये 50 साल में है, आधी सदी, इंशाअल्लाह ये तंजीम 100 साल तक चले। हमारी दुआएं आने वाले हर साल तक, सदी तक, जब तक महदवी है चलते रहे। मैं सबसे दुआ का तलबगार हूँ कि आपके हक़ में दुआ कीजिए, तंजीम के हक़ में। यार जिंदा सोबत बाकी। अल्लाह हाफिज़ भाई।